Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari and continuing the process of taking up important themes. Today, also on your screen, you will find number of important themes. So, do have a closer look and try to understand how you can use them in upgrading your personality, in picking up points for the prelims, in identifying those small elements which will help you to solve questions and also to write without being, fretting too much or without being exerted. How India will conduct census. Census will be taking place in two ways. One is house listing and population enumeration. The one in 2027 will be India's first digital census where enumerators will use an app to collect data and a new coding system. So this is a very amazing positive governance tool it is going to be there. So it is going to serve as a national mirror reflecting changing patterns of identity, occupation, living conditions, family structures. So the change is very crucial because it is going to help us to create new policies. It is based upon electoral constituencies because you are voting and those families voting, and below 18 years and 14 years it will be becoming part of the family. SC/ST hai, Article 82 of the Constitution mandates that the delimitation of constituencies must be based on most recent census. Article 330 and 332 reserve seats for SC and STs in legislature. Very important fact. Both are for very important for the prelims in terms of even in reasoning and assertion questions. Central grants to state and districts often based upon population, thus depends upon census data. Subsidies, ration allocations, everything. So ministries ranging from rural development to education to health, everywhere census data is used. So there is going to be huge political implications, and there is going to be, this is the first census in 1931 which is going to capture really caste data beyond the broader classification of scheduled caste and scheduled tribes that have been enumerated in every census post independence. So timing is also important. It will be released well ahead of 2029 Lok Sabha elections. So conducting a census is a very important journey. 30 lakh enumerators, 30 lakh school teachers, that means. They will be conducting the upcoming census. 1.2 lakh functionaries at the district and sub-district levels. Very important. A very important role of digital public infrastructure also indirectly and directly. So house listing is there. So they will be visiting every structure in the country to record the characteristics of the building and households, collect data on the nature of the building, whether it is residential, commercial, whatever it is, material used in its construction, number of rooms, ownership, status, sources of water and electricity, and the toilets it has, fuel used for cooling, availability of assets like television, phones, and vehicles. Enumerators are also going to collect data on the head of the household uh, and also the number of members. So this information is helping to build a profile of the housing stock and assess the amenities and living conditions across India. And this is going to take place, between March 1st and 30th September. Why I am elaborating this? So that you can understand and even create your own your case studies and data when someone asks you how you will do something. So population enumeration is very important. All data will be taken up, and it is an app-based process. They will be using a handheld devices or smartphones. They will be having a census app. There is no pen and paper. So digitization is expected to make it faster, to reduce the errors, speed up the process, and there will be more quality control. So new coding system will be there. So there is going to be questions necessitated which are having descriptive responses. So not only there will be more data collection, there will be more smarter data collection and so forth. And registrar general of India is already erected the digital infrastructure to these key changes, and the census management and monitoring system CMMS, it is going to be there. So the new information innovators will seek, that is internet connection is there or not, ownership of mobile is there or not, access to drinking water source inside the dwelling, type of gas connection, or even vehicle ownership, respondents mobile, you know, respondents mobile, and the kind of serial com- they are they're consuming. So this is going to be there. It is very important. There are going to be some challenges in certain part of India, connectivity, locations, and you can say there can be glitches with the app also. And in case of GPS,
Census officers will be conducting, periodic checks for quality purposes. So this is what you have to think and say, that how now a person is going to make sure that not only he is cooperating, but even enumerators are also putting their best. So that is how we have to see not just the cost, but also the long-term benefits. Very important for the prelims is the next very important topic of the Bonn Climate Change Conference. So the Bonn Climate Change Conference is linked with the idea. It is an annual mid-year meeting that takes place under UNFCCC, an international agreement. What is UNFCCC? An international agreement which was signed in 1992. It means, I mean to say, like, it is coming under UNFCCC, and it is an international agreement signed in 1992, and it provided the basis for climate change negotiations. So formally, it is known as the sessions of UNFCCC, that is subsidiary bodies, SBS, and along with annual conference of parties, that is COP, it is the only other regular climate summit hosted by UNFCCC. That is what is important for the prelims. So Bonn Climate Change Conference is very important. You must know that. So attended by members of SBs, that is subsidiary bodies. You must know the objective also to discuss technical and scientific aspects of climate negotiations, set the agenda for COP, which is going to take place in November. So that means it is a kind of a precursor for the agenda in November. So the result of the negotiations in Bonn are highly influential on decisions made at COP. Recommendations made at SBs are frequently, they appear in the final decisions. The key player, you can say, are very important. There are two permanent SBs, the subsidiary body for implementation, that is SBI, and the subsidiary body for scientific and technological advice, that is SBST. So this is important for the mains exam. SBI, the role in governing UNFCCC's governing bodies in assessment and review of the implementation of the decisions. SBSTAs, it is advising governing bodies on scientific knowledge. So the aspect of both the bodies are different. And what is this year's agenda? That is also you have to see. So I think this itself is a complete package in its own. You must know that how UNFCCC is coming into picture, and how before UNFCCC, Bonn Climate Change Conference, annual media meeting is very important. So with clarity, if you do so, that is the subsidiary body for implementation, subsidiary body for scientific and technological advice. दोनों के नाम से पता चल जाता है. एक का काम है assessment and review, दूसरे का काम है technical knowledge. Sleep apnea, a condition characterized by having a trouble breathing properly while sleeping, could become more common and severe in warmer future. But that's how we need to understand that it is also one of the other consequences when we are speaking about what is going to happen when we see the future. So am I like I'm saying, like Machiavelli, Daniel Craig is Bond, and Dench's M in Skyfall. So MI6 gets first woman chief. 30 years after Dame Judi Dench first appeared on the silver screen as M, the head of the British Foreign Intelligence Agency, MI6, or what we can say, the British intelligence, very important. So it is a kind of a breaking of glass ceiling. It is a kind of a change in the work scenario. So MI5, Military Intelligence Section 5, officially the Security Service, is the UK's domestic counterintelligence and security agency. So it having the root in Secret Service Bureau, not important for the prelims or your mains. But what you have to see, the MI6 is officially the Secret Intelligence Service. It is the UK's foreign intelligence agency tasked with collection, analysis, and dissemination of foreign intelligence, as well as conducting espionage activities outside British territory. This is important. And GSHQ, that also. So the question arises, will the time will come in India also when we will have the first female head? So official acknowledgement of MI6 existence came in 1994. India's RAW has a similar remit as the MI6, as I just said. So RAW में कब ऐसा होगा, ये हमारे सोचने की एक बात है. Now we know that the cereal rich and nutrition poor is a very much important paradox. आप मेंस के आंसर में GS3 में आप लिख सकते हैं. You must learn to bring phrases, you must learn to bring data, you must learn to bring
You must learn to write shorter lines. You must learn to bring small paras. So India has toppled China to become the world's largest rice producer. Great milestone. लेकिन क्या ये माइलस्टोन अपने आप में प्रॉब्लम है? मोर राइस, मोर एमएसपी मिलेगा, सेफ क्रॉप है, मोनोकल्चर, पल्सेस भाड़ में गई, ऑयल सीड्स बाहर में गए, मिलेट्स का क्या होगा? 4 to 5 times more water is required, more fertilizers are required. पंजाब हरियाणा, भगवान मालिक, लॉन्ग टर्म में कैसे होगा? दिस इज अ क्वेश्चन विच यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस एंड सॉल्यूशन. लेकिन हाउ मच इंडिया is producing? India's rice output surged to 149 million tons, 25% rise as compared to 2019-20. So, according to the global cereal estimate from the US Department of Agriculture, China produces packed at 145 million ton. However, the rice productivity in China is at 7.1 tons per hectare. It is very much higher than India, which is having 4.3 tons per hectare. So that is why we can say that India is currently the largest exporter with 40% share in the global rice trade. So important. न्यूट्रिशन पे फर्क पड़ेगा क्योंकि चीप कैलोरी रिच सीरियल्स जो हैं वो हंगर मिटाते हैं, लेकिन क्या वो आपको वाकई व्हाट वी कैन से आपको वाकई लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन देते हैं? दैट इज हाउ द क्वेश्चन इज. ट्रम्प्स अमेरिका, हाउ द ग्लोबल परसेप्शन इज चेंजिंग. एज आई ऑलरेडी सेड कि क्वेश्चन तो राइज हो रहे हैं. whatever America is doing right now, it gonna have impacts in the longer run, not immediately. But वही बात है कि India is having a favorable view. Indians, I should say, are having a favorable view of Donald Trump, but not many countries, including Europe. They believe that he is a negative force, but many are not thinking so. So ये एक सोच की विषय की बात है. आप ऐसे में या कहीं आप जब आप एक जुडिशियस पर्सपेक्टिव से लिखते हैं तो वहां आप इसको कैसे पुटअप करते हैं वो इम्पोर्टेंट है. जैसे अभी इंडिया ने यूएस के इस इनविटेशन को प्लीज कम एंड मीट इन द यूएस उसको डिक्लाइन कर दिया बिकॉज देयर इज नो टाइम फॉर द प्राइम मिनिस्टर. एंड सेकेंडली इंडिया जो है ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज में मीडिएट नहीं करना चाहता जिसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. Voice first internet, very important concept, very important for technological perspective. कुछ startups are giving voice to the non-typing majority among Indians, 900 million internet users. India's voice AI sector is experiencing a massive growth. Linguistic diversity है पहली बात तो भारत में बहुत ज्यादा. Increasing demand for voice first digital interactions है. जैसे सर्वम एआई है, सॉकेट लैब्स है, घनी ज्ञानी एआई है, जैन डॉट एआई है. वो ऐसे फाउंडेशनल मॉडल्स रेडी कर रहे हैं. स्टार्टअप्स वो जो बिल्ड कर रहे हैं वॉइस बेस्ड मॉडल्स एप्लीकेशंस, उनको अगर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगा देन देयर इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म चेंजेस एंड लॉन्ग टर्म यू नो उसके अंदर लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट होगा. सो इफ यू आर अ मलयाली, यू आर स्पीकिंग इन योर फोन इन मलयाली एंड आप उससे बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट टाइम इंटरनेट एंड मोबाइल फोन यूजर जो है वो अगर अपनी भाषा में कर पाते हैं सो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ह्यूज रेवोल्यूशन. Similarly, another example is given here. Textile manufacturer with crores of rupees in revenue spend his entire day talking to people on his phone to get tasks done. A computer system loaded with the business software of the world is useless to him. So they are the part of non-typing majority. जैसा मैंने example दिया. अगर इंडिया में 900 million internet users हैं, so these are primarily from tier 2 and tier 3 cities and villages where English is uncommon and digital literacy is just emerging. So preference is for voice communication. So nobody is typing in Gujarati or Marathi. They are just speaking and then rest of the job is being done. So voice remains the primary interface for most Indians. Our rural entrepreneurs and gig workers and homemakers, and they are reshaping India's internet, demanding tools and listen and respond in the native languages. ये धीरे धीरे एआई स्टार्टअप्स को एक शेप दे रहा है. और ड्राउट प्रोन महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल वो क्रॉप इंश्योरेंस, क्रेडिट एलिजिबिलिटी या फिर आप कहिए एग्रीकल्चर की जो बातें हैं सारी बातें बिना कुछ पढ़े उन्हें जो है 3 मिनट का वॉइस कॉल आता है, जो वॉइस कॉल से वो सारा बात कर लेते हैं. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी इस तरह से काम कर रहे हैं. सो ये एक तरीके से
बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से ये एक रिवोल्यूशन दिखा रहा है। प्लस साइड की अगर मैं बात करूँ, हिंदी इज द सेकंड मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज ग्लोबली ऑन द गूगल असिस्टेंट, जस्ट बिहाइंड इंग्लिश। So voice gaining ground in multilingual markets such as India is very very important. So गवर्नमेंट ने भी इसको पुश दिया। इंडिया का वॉइस एआई सेक्टर, जैसे मैंने आपसे कहा, और इसके चैलेंजेस भी अपने हैं लॉन्ग टर्म में। और वो ओपन एआई अगर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। डीप क्रैम ओपन आई मीन टू से ओपन सॉफ्टवेयर अगर रहते हैं, अदरवाइज आप उतने तेजी से उतने ब्रॉड बेस के लिए समाज के लिए जो बदलाव चाहिए उसको आप नहीं ला पाएंगे। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का वॉइस फर्स्ट इंटरनेट है, वो डोमेन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो दिखा रहा है, वो उसको और ज्यादा हमें रोबस्ट करना होगा। क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम्स वेस्टर्न जो मॉडल्स हैं उनके लिए पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसलिए हमें अपना रास्ता बनाना होगा। कपिल सिब्बल साहब का कहना है कि क्या जरूरत थी सीजीआई को जस्टिस वर्मा रिपोर्ट को गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करने की। क्योंकि उनका ये कहना है कि उनका ये कहना है कि ये अपने आप में फुल प्रूफ नहीं होगा। जैसे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ने इम्पीचमेंट मोशन साइन बाय 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्यों नहीं उन्होंने 6 महीने 6 महीने के लिए भी जस्टिस शेखर यादव वाला केस आगे किया। सो गवर्नमेंट चाहती है जज साहब को बचा दें, इसीलिए चेयरमैन ने चीफ जस्टिस को लिखा कि आप जो है मत प्रोसीड करिए इन हाउस इंक्वायरी को, हम देख लेंगे इसको। तो उनका यही कहना है कि जस्टिस रामास्वामी के केस में क्या हुआ था और उसके बाद आज तक कैसे हुआ है। सो इट इज गोइंग टू बेनिफिट, एंड द फाइनेंशियल जो भी फाइनेंशियल प्रोफिलिगेसी जो बताई जा रही है वो मिसकंडक्ट तो है, लेकिन क्या उसको वाकई पार्लियामेंट के थ्रू आंसर दिया जाएगा। उन्होंने जस्टिस गांगली का एग्जांपल दिया जो सेक्सुअल हरासमेंट का जिनके ऊपर केस था। इंक्वायरी चाहिए थी द लेकिन हुआ क्या, हुई थी इन्वेस्टिगेशन। सो इंक्वायरी अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1964 एक्सोनरेटेड हिम और मोशन फेल हो गया। इसी तरह उन्होंने एक और एग्जांपल दिया। मेंस के लिए सारे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसी पर्सपेक्टिव से नहीं लिखना है कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। जस्टिस सौमित्रा सेन, ही रिजाइन बिफोर द वोट ऑन इम्पीचमेंट। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड था when acting as a receiver appointed by Calcutta High Court again. The facts in relation to the fund were not in dispute, but still, none of the above cases was the requirement for an investigation of facts to be established. So, लेकिन वो यहाँ कहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चाहिए क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स नहीं है। अदर देन दैट देयर आर वीडियोस ऑफ बर्न नोट्स, उसके अलावा क्या है। तो नो एविडेंस टू डिस्कवर कि कितना कैश था। मेन स्ट्रीम मीडिया विदाउट एविडेंस के कह रही है कि 4 से 6 बोरे थे। कौन लाया, कहाँ रखे, कुछ नहीं बात है। आउट हाउस जो है बाउंड्री वॉल से अलग है, सेपरेटिंग द रेजिडेंस फ्रॉम द आउट हाउस एंड स्टाफ क्वार्टर्स। सीआरपीएफ थे, डायरेक्ट व्यू नहीं है आउट हाउस का। देयर वाज आल्सो ए बैक गेट देयर, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। कैश किसने रखा, कितना कैश रखा। सो द क्वेश्चन यही है कि उनका यही कहना है कि ये सब चीजें, ये सारे क्वेश्चन जो है आंसर नहीं हुए हैं। जस्टिस यादव के जो परिवार, जस्टिस वर्मा के जो परिवार था, क्या उन्होंने कुछ रोल प्ले किया, उसे दूर रहने को क्यों कहा गया, दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर फायर सर्विस का क्या रोल था। सो सो द क्वेश्चन इज कि जो सुप्रीम कोर्ट का इन हाउस कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस एंड जज लुक्ड इनटू द मैटर, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि दिल्ली पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। कमेटी ने कहा ये उनका पार्ट नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि दिल्ली जो फायर सर्विस है उन्होंने कैसे कंडक्ट किया। सो द पॉइंट इज दैट ये जब चीजें नहीं हुई हैं तो उनका कहना है जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है हम पूरी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से नहीं मान सकते। तो सीजीआई शुड नॉट हैव फॉरवर्डेड द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ऐसा यू नो मानना है कपिल सिब्बल साहब का। उनका कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एजुकेटेड इतने होने चाहिए कि वो ऐसा कर सके। तो ये जो मुद्दा है कि पुलिस कैश को सीज करती, पंचनामा करती और एफआईआर करती, तो ये सारी चीज नहीं हुई। इसीलिए जब फुल फ्लेज इंक्वायरी नहीं हुई है तो मामला फिर से वैसे ही होगा। तो मेंस के लिए हमारे पास एक पूरा मुद्दा आ जाता है। तो कपिल सिब्बल साहब का जो क्वेश्चन है, मेंस का पूरा एक थीम आ जाती है। और
सिब्बल साहब ने ये भी कहा कि जस्टिस वर्मा वाज परहैप्स वन ऑफ द फाइनेस्ट जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट एंड called the push for his impeachment as a part of a broader plan to undermine judicial independence. So there are contradicting views, and there has been no action on the opposition's motion to impeach Justice Shekhar Yadav, जिसका मैंने पहले एग्जांपल दिया। तो आपको मेंस के एंगल से इसको देखना है, पीटी में सिर्फ फैक्ट होंगे। इंडिया मस्ट बिकम अ ग्लोबल लीडर इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसा हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का कहना है। एनडीआरएफ, एनडीएमए, तो हम जो एनडीएमए की जो वेबसाइट है उस पे अगर हम जाते हैं और हम उसके ऑब्जेक्टिव्स और कीवर्ड्स को लेते हैं तो वो मेंस के पर्सपेक्टिव से हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। सिप्री के ऊपर ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि सिप्री, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने एक रिपोर्ट रिलीज की। उसने कहा भैया चाइना के पास तो बहुत सारे न्यूक हैं, पाकिस्तान के पास इंडिया से थोड़े कम है, लेकिन सिर्फ बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर हम पर्सपेक्टिव देखें तो इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और अपने आप को सही दिशा में रखने के लिए इतना बहुत जरूरी है। सो इंडिया इज नॉट एक्सपेंडिंग इट्स आर्सेनल, इंडिया कैन ऑल्सो एक्सपेंड। जब रशिया और यूएस के पास 5,000 से ज्यादा है, तो भारत के जो 100, मतलब 180 या पाकिस्तान के 170, पाकिस्तान के 170 है, तो इंडिया के पास तो 500 होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यही कि इसका भी कोई अंत नहीं है। प्रीलिम्स के लिए, एग्जाम के लिए मैं बता दूं आपको, एनपीटी किसने साइन किया है, कौन से रियल न्यूक्लियर मेंबर्स हैं, कौन सा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर है, कौन सी ऐसी कंट्रीज है इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब तो हैं लेकिन वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं है, ये आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। जैसे अब अगर बात की जाए कि मॉडर्नाइजेशन की, जैसे कि डिप्लॉइंग डुअल कैपेबल मिसाइल्स, तो ये जो है फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, उनके पास है मल्टीपल वॉरहेड्स के लिए। चाइना ने 2 मिसाइल, दे हैव डेवलप्ड 2 मिसाइल्स टू कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स। अभी इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया इस तरफ परस्यू कर। पंजाब का वॉर ड्रग्स के ऊपर, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार के अपने गवर्नेंस इश्यूज, हर स्टेट का अपना एक मुद्दा है। उत्तराखंड के अपने हैं, हिमाचल के अपने हैं, लेकिन दोनों मुझे कहना चाहिए माउंटेनियस स्टेट्स। सो क्या है की फीचर्स? लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट अगर एंड यूजर्स पे ही फोकस करेगा, विक्टिम्स पे फोकस करेगा, परपेचरेट्स पे नहीं, अगर परपेचर्स पे करता है देन द फिगर इज टोटली डिफरेंट। तो इसलिए कीवर्ड क्या है कि जो रेजिडेंट रिहेबिलिटेशन है वो एक अदर एस्पेक्ट है, वो अपने आप में चलना चाहिए। द प्रॉब्लम लाइज व्हेन देयर इज अ कॉम्प्लिसिटी बिटवीन द पावर्स एंड ऑल्सो द नॉन स्टेट एक्टर्स, दैट इज ड्रग ट्रेड। तो कॉम्प्लेक्स है ड्रग ट्रेड, म्यूल्स हैं उसके अंदर, सप्लायर्स हैं, नार्को टेररिज्म आप इसको कह सकते हैं। एक नार्को टेररिज्म का जो ये पंजा है, पंजाब पुलिस से लेकर, पंजाब गवर्नेंस से लेकर, और पंजाब की सोसाइटी में जो होपलेसनेस है यूथ में की, या तो कनाडा जाना है, या अमेरिका जाना है डंकी रूट से, या फिर यूके जाना है, या गोली चलानी है, या फिर म्यूजिक चलाना है, तो ये कैसे जाएगा? इकोनॉमी तो डाइवर्सिफाई हो नहीं पाई बियॉन्ड एग्रीकल्चर, रिटर्न्स तो आए नहीं। तो फिर गाने बनेंगे, चक दे रिवॉल्वर, यही सब होगा। जिथे जावांगे गड्डी मोड़ेंगे, सारे के सारे सिग्नल तोड़ांगे, यही बनेगा। सो द गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड टू ड्राइव द ट्रांसफॉर्मेशन। गवर्नमेंट जॉब से भी इतना वो नहीं हो पाया है, तो क्वेश्चन अराइजेस कि आप एंड यूजर्स को नहीं, आप परपेचरस को भी पकड़ो, और उसके बाद जो है आप साथ में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करो जो कि गवर्नमेंट चेंज होने के पश्चात भी वो स्ट्रक्चर आगे चलता था। देयर मस्ट बी रिमूवल ऑफ रेड टेप, देयर मस्ट बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बर्डन स्मॉल बिजनेस में नहीं होना चाहिए, करप्शन को आपको रोकना पड़ेगा। पंजाब शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 जो है उसको भी आपको अमेंड करना पड़ेगा। तो ब्रॉडर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अगर पंजाब के सेक्रेटरी होते हैं तो दो ऐसी कौन सी चीज करते जो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो? कमिंग टू सीजन ऑफ मिक्स्ड टाइडिंग्स, देयर इज अ रूम फॉर ऑप्टिमिज्म बट देयर रिमेन्स कंसर्न। तो वही बात है कि ये बात हम अगेन वही हम बात कर रहे हैं कि भारत में जो अभी इकोनॉमिक ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है वो कहाँ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट जो है, क्या वो वाकई बहुत बढ़ेगा या वो कंट्रोल में रहेगा? तो ग्रोथ अगर चाहिए तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ सकता है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो है वो कमांड और कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स ऑप्शन है तो आपको फैक्ट और फिगर भी याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज जनरल स्टडीज में तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है।
सो मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं उनसे बहुत इम्पैक्ट आता है। फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन के जो फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर स्टेट सेंटर रिलेशंस को करेंगे उस पर इम्पैक्ट आएगा। पे कमीशन का अवार्ड होगा उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारे फैक्टर सम ऑफ द फैक्टर्स हैं। उसके अलावा आप डिफेंस स्पेंडिंग मान लीजिए, आप सोशल सिक्योरिटी स्पेंडिंग मान लीजिए, आप एमजी नरेगा जैसे मान लीजिए। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर भी जो सरकार की जो स्पेंडिंग है उसको इम्पैक्ट करेंगे, और जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स को भी आप मान लीजिए। तो वही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, लेकिन क्वेश्चन ये है प्राइवेट सेक्टर का, उसमें प्राइवेट सेक्टर का सेंटीमेंट, प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट कितना होगा। ये एक आपके सोचने का क्वेश्चन है, इस पे आप सोच के बताइए। ग्रीन बिल्डिंग्स हमारे भारत के हर इंस्टीट्यूशनल सेटअप का पार्ट होने चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। तो इसीलिए बात सिर्फ आज क्लाइमेट चेंज की नहीं है, क्लाइमेट स्ट्रेस तो बहुत पहले से आ रहा है। लेकिन क्या हो पाएगा जब 2 डिग्री और ज्यादा हीट हो जाएंगी, कंक्रीट है, एसफाल्ट है, ब्रिक्स है, नंगे पैर चल नहीं पाओगे, पैर जल जाए। सो सब तरह का वेदर, हमारी सब तरह की बिल्डिंग झेल लेंगे ऐसा नहीं है। तो इसीलिए सिटीज आर द प्रोडक्ट ऑफ पीपल्स एस्पिरेशन, प्रोग्रेस, लैक ऑफ गवर्नेंस मेनी ए टाइम्स, और अर्बन एक्सपेंशन, जो कि रियल स्टेट और उसके बाद जो है नेचुरल कैपेसिटी जो सिटी की होती है वो भी वीक हो जाती है। प्लान्ड और अनप्लान्ड सब साथ में हो जाता है। दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु जब बोलता है कि भाई आसपास के डिस्ट्रिक्ट को बेंगलुरु नॉर्थ बोला जाए और आसपास के डिस्ट्रिक्ट को बेंगलुरु साउथ बोला जाए तो बात ही अलग है। तो सिटीज रेजिलिएंट कैसे बनेगी? ग्रीन बिल्डिंग्स, आप, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप कैसे, आपने कभी ग्रीन बिल्डिंग में आप खुद गए हैं क्या? आपका कॉलेज, क्या आपका घर, क्या आपका सोसाइटी ऐसा क्या है जो ग्रीन के लिए कर रहा है? ये आप सोच के मुझे बताइए, तब इस पर चर्चा हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसने बोला कि 50 बीपीएस बढ़ गया, लेकिन वही है, सीजनल फैक्टर्स है। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है अगेन कि स्किल बेस्ड के लिए हम ऐसा क्या रिवोल्यूशनरी कर रहे हैं जिसके रिजल्ट पिछले 5 साल में हमें मिले। ऐसी कौन सी स्कीम, ऐसे कौन से प्रोग्राम है, और अगले 5 साल में भी कैसे होगा? ये दो बातें आप सोच के करिए। क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशन इज बिकॉज ऑफ द सीजनल चेंजेस, वो तो होगा। लेकिन मैं यहाँ से इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में आपसे पूछ रहा हूँ, चाहे वो रूरल इनकम है, चाहे वो अर्बन इनकम है। आप ये खुद सोचिए कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पे जज किया जाना और कैसे बढ़ेगा। रेटेड ऑर्गेनाइजेशंस आर सीइंग इंक्रीज साइबर थ्रेट्स। क्यों? बिकॉज डिसलॉजिंग, disrupting them is going to create, more, what I should say, more kind of benefits and incentives. So cyber attacks, they are posing risk to the credit worthiness of debt issuers. और जब साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट आप देखते हो, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एक्सपीरियंसिंग साइबर इंसिडेंट्स हैव स्टडली इंक्रीज। तो यही बात है। तो सेक्टरल हॉटस्पॉट आप मान लीजिए। अब जैसे सिग्निफिकेंट वेरिएशन है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और रिकरेंसी में भी। नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स एग्जिबिटेड हाईएस्ट रेट्स विद 42%, एटलीस्ट वन इंसिडेंट सिंस 2022, 14% सफरिंग मल्टीपल इंसिडेंट्स, क्योंकि है क्या, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो दिस इज द नेचर ऑफ साइबर अटैक्स। तो हेल्थ केयर डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के बाकी इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ जो सेक्टर में जो बाकी प्रिविलेज डेटा है वो हो सकता है। पब्लिक सेक्टर हाउसिंग इज द सेकंड इन फ्रीक्वेंसी। एजुकेशन, एजुकेशन आप कहिए कि एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, पर हायर एजुकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे आप मेरी बात को? वो भी एक बहुत बड़ा एरिया आ जाता है। तो इंडिया के हिसाब से आप सोचिए, इंडिया इसके लिए क्या करे। हमने साइबर वॉर के लिए हमने साइबर कमांडोज से लेकर साइबर सिस्टम से लेकर हमने पूरा एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइए और एक बार आप देखिए कि 1930 सिर्फ नहीं है, उसके अलावा भी हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। एंड वी आर मेकिंग इट ए रॉबस्ट सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट। वो आप देखिए। AIF, दैट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इस बार तो आया भी था, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ गया था बहुत सिंपल, क्या अल्टरनेटिव फंड्स हैं कौन कौन से। सो वेल्थ मैनेजर सीक्स म्यूचुअल फंड लाइसेंस टू वो इन्वेस्टर्स वाया SIFs। ये एक बात है। तो यानी कि अल्फा ग्रेप सिक्योरिटीज, मोनार्क नेटवर्क कैपिटल, मार्सिलस इन्वेस्टमेंट, ये नाम दिए हुए हैं, इनसे कोई खास मतलब नहीं है। लाइसेंस लेना चाहते हैं क्योंकि स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड्स जब बनेंगे तो आप कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ SIFs देयर इज लोअर इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड ऑफ 10 लाख। Investors are likely to opt for SIFs instead of putting in rupees 50 lakh in PMS or AIF in one go.
क्योंकि आईएफ हैव टू पे मच हायर टैक्स रेट, 30% फॉर रेजिडेंट इन्वेस्टर्स एंड 39% फॉर नॉन रेजिडेंट्स। तो यही बात है कि मतलब कि आप देख लीजिए कि जिस तरीके से कैपिटल मार्केट में चेंजेस आने की बात है, वो सब चाहते हैं कि कैसे मार्केट सेंटिमेंट को भुनाया जाए। दैट इज वाई ये अपने आप में एक प्रिविलेज्ड अपॉर्चुनिटी उनके लिए आ रही है। ये अपने आप में हाई नेट वर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात, उनको ज्यादा रिटर्न देने की बात है। तो दिस इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, दिस इज वन ऑफ द वेज हाउ हाउ थिंग्स आर मूविंग अहेड। सो किसी भी डेवलप्ड सोसाइटी में, अर्बनाइज्ड इकोनॉमी में, और जहां हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऐसे एलिमेंट्स को आप एक लाइन मेंस में लिखने के लिए आप जरूर रखिए कि अल्टरनेटिव जो फंड्स हैं या जो अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट फंड है या वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, वो कैसे रोल प्ले कर रही है। ऑडिटर सपोर्ट कैग मूव टू रोप इन प्राइवेट कंपनीज, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ऑडिटर्स आर सेइंग दैट कैग का रिसेंट डिसीजन है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स फॉर ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑटोनोमस लोकल एंड अदर बॉडीज, अगर ये ट्रांसपेरेंसी से किया जाएगा, अगर ये गुडविल से किया जाएगा, अगर ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके किया जाएगा, तो फिर हमारे पास जल्दी रिजल्ट आएंगे, जल्दी या फीडबैक दिया जा सकता है, जल्दी कोर्स करेक्शन हो सकता है, और साथ साथ में आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी यूज किया जाएगा। अमिताभ कांत, रोल मॉडल, हार्ड वर्किंग एंड लॉन्ग टर्म डिस्टिंग्विश्ड सिविल सर्वेंट, age 69, belonged to the 1980 batch of IS cadre, or he was the Sherpa also, India's former G20 Sherpa. He is saying that I have decided to embrace new opportunities and embracing new chapters. So he will be now, helping the startups, helping giving guidance and so forth. So, he is going to provide his privileged services, to the society in a different way. और आप कह सकते हैं कि जैसा कि एग्जांपल यहाँ दिया भी हुआ है कि एरोन कैपिटल चेयरमैन मोहनदास पाई, ही इज अर्जिंग प्राइम मिनिस्टर टू अपॉइंट कांत टू लीड a national startup initiative with significant funding support. So that's how it is. And Kerala's own God's own country जो कैंपेन था, that was the brainchild of Amitabh Kant, and aspirational district program also. Global interest rate limbo reigns after 150 days of Trump. So among the countries that account for two-fifths of the global economy, only Sweden and Switzerland are anticipated to tweak rates. Bank of Japan may hold after governor is signaled the inflation is still not a target. So वही बात है कि पॉलिसी पैरालिसिस अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी में भी आ जाएगा, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं है कि आगे अभी होने कैसे वाला है, आपकी ग्लोबल टैरिफ में क्या चेंज आने वाला है, आपके किस कंट्री के साथ क्या रिलेशन अमेरिका रखने वाला है, कब कहाँ पर क्या हो जाए, और कौन सी विम्स एंड फैंसी से चीजें होंगी, तो उसके कारण से आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट है अगर वो बढ़ता है, तो जैसे एक देश की इकोनॉमी में फर्क आता है, वैसे ग्लोबल इकोनॉमी में फर्क आएगा। प्रिविलेज ज्यादा प्रिविलेज है, गरीब और मरेगा। एंड यू वांट टू से दैट इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरी पुअर एंड developing nations, lesser developed nations in Africa, and also when we speak about South Asia, तो उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। इंडिया में जो इंजीनियरिंग इंडिया कॉम्पिटिटिवनेस जिनका एग्जांपल जैसे यहाँ दे रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू इलेक्ट्रिसिटी है अगर आप कह सकते हैं। दूसरा, डिजिटल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, ऑफ डिजिटल डेमोक्रेसी ऑफ स्केल है हमारे यहाँ, तो नैरेटिव अब चेंज हो रहे हैं। तीसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है मल्टीपल सेक्टर्स में, मोबाइल फोन है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल्स की बात अगर की जाए, तो आउटकम लेकिन कैसे आएगा? आउटकम आएगा जब इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस स्ट्रीमलाइंड होकर होंगी। आउटकम आएगा जब हम डिस्पैरिटीज को साइड करके इकोनॉमिक ऑफ स्केल बढ़ाएंगे। तो इस कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक सिस्टम को बनाने के लिए, प्रेडिक्टेबल, रिलायबल बनाने के लिए आपको लेबर कोड इन्फोर्समेंट चाहिए, हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। हमें साथ साथ में जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए हमें गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्रिएट करना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप या बाकियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लेकिन उसके लिए जो है अनइंटरप्टेड वाटर, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, एंड जो इंजीनियरिंग टैलेंट है वो सारा चाहिए। तो यानी हम रेडी हैं, लेकिन हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें हमारा लेवल रेज होना चाहिए एसडीआर के अंदर।
जो आपकी इकोनॉमिक सीरीज में आप पढ़ सकते हो। साथ साथ में हमें ये भी देखना होगा कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रॉबस्ट रहे और वो और डिमांड को फुलफिल कर पाए। सो इंडिया के पास मोमेंटम है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अनमैच्ड है, लेकिन फिर भी जो लैकुनाज हैं सॉलिड, उनको पूरा करना होगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं अपनी इकोनॉमी को मानूं कि हमारी इकोनॉमी मोस्ट कॉम्पिटिटिव और चाइना की इकोनॉमी की जैसे compete करे, तो चार कौन से एरिया हैं जिनको आप सॉलिड वर्क करना चाहें? सिमिलरली जब मैं साइंस की बात करता हूँ, तो साइंस में भी इकोनॉमी से आप यहाँ फ्लिप कर लीजिए जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए। यानी एग्जेम्प्टिंग रिसर्च रिलेटेड जी गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम जीएसटी इज स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म। इनका कहना है कि इससे क्या है, पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन आएगा, पब्लिकली फंडेड रिसर्च सेंटर्स को मौका मिलेगा, एक्सपेंसिव और कटिंग एज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आने चाहिए, हमें इनोवेशन और हमें जो है साथ साथ के अंदर डॉज बिहेवियर को देखना होगा, हमें लेबोरेटरीज के साथ साथ बाहर भी सोचना होगा, स्टार्टअप कल्चर को हमें जो है सही से एम्ब्रेस करके उसको रियली में आगे बढ़ाना होगा, ना कि सिर्फ भैया बाहर से फंडिंग आ गई और आपने कोई प्लेटफॉर्म से रेडी कर दिया और वो चेंज कुछ ला नहीं रहा है, फिर वो बाइजू बन जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उनको इनोवेशन दीजिए, उनको भी आप छोटे छोटे मौके दीजिए कि कैसे वो इनोवेशन लेके आए। जैसे हमें हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है पब्लिक जो इनोवेशन है, हमारे पास इनोवेटिव इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, हमारे पास जुगाड़ की जो टेक्नोलॉजी है उसको और स्ट्रीमलाइन कीजिए। लेकिन जो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, देन द टैक्स रिलीफ, देन एकेडमिया को और प्रमोट करना, लेकिन एकेडमिया भी लूप होल है। तो क्वेश्चन अराइजेज, क्या वाकई सरकार क्या कोई भी प्लेटफॉर्म को ऐसे ट्रांसपेरेंसी मोड में नहीं दे पा रही थी? यहाँ पे इसरो का एग्जांपल क्यों नहीं लिया गया? इसरो ने प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया, डीआरडीओ भी ऐसा कर रहा है और हमारी बाकी नेशनल लैब्स ने भी ऐसा किया है। तो जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप के जो नए गुरु ज्ञान है वही सारी चीज करेंगे। इंडिया अट्रैक्टिव कर रहा है, इंडिया जो है अट्रैक्टिव भी हो रहा है और इंडिया अट्रैक्ट भी कर रहा है ग्लोबल टैलेंट को, पर आर&डी डेस्टिनेशन के लिए और पैसा चाहिए। तो हरिलाल भास्कर जी जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आईस्टेम के, उन्होंने बातें तो सारी बहुत अच्छी बताई, लेकिन मेरा ये मानना है जो प्रैक्टिकल तरीके से है, साइंटिस्ट कितने सेटिस्फाइड हैं, आप टेक्निकल एजुकेशन जो है वो कितनी सीबीएसई स्कूल्स को कितनी पुशअप कर रहा है। तो जीएसटी एक स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म है, जीएसटी का आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा, रिफॉर्मिंग जीएसटी टू सपोर्ट आर&डी। टैक्स पॉलिसी नहीं है वो ठीक बात है, लेकिन जो माल जेब में जा रहा है, जो बाहर ऐसे ही हांड रहे हैं घूम रहे हैं, उसका क्या होगा? तो मतलब हम कंजर्वेटिव हैं, लेकिन लीडिंग रिसर्च इकोनॉमीज जो है वो बहुत पहले से जागी हुई हैं, उनके पास लोअर फाइनेंशियल बैरियर्स हैं और वो एसेंशियल रिसर्च मटेरियल को एग्जाम भी हो जाता है। लेकिन एशियन पावर हाउसेज लाइक साउथ कोरिया, चाइना और सिंगापुर भी टैक्स क्रेडिट देते हैं। हम भी कोई कम नहीं है, लेकिन हमें फिर भी और चीजें सोचनी होंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे लिखकर बताइए। डीजी पिन, इंडिया पोस्ट ने एक ओपन सोर्स इंटर ऑपरेबल जियो कोडेड ग्रिड बेस्ड डिजिटल सिस्टम, जिसको डीजी पिन कहा, वो उन्होंने किया। तो एक अल्टीमेट एड्रेसिंग सॉल्यूशन होगा डिजी पिन या फिर डिजिटल पोस्ट ऑफिस इंडेक्स नंबर। ये वही है, आईआईटी हैदराबाद एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने इसरो के साथ किया। इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम इतनी चर्चा करते हैं। फाउंडेशनल लेयर है, डीजीपिन ट्रांसफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स जियो लोकेशन डेटा इनटू सिंपल इजी टू यूज 10 कैरेक्टर कोड बेस्ड ऑन लैटिट्यूड एंड आल्सो लॉन्गिट्यूड। तो आप डीजीपिन की जो डेफिनेशन या उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो आप लिख लीजिए पहले तो। साथ साथ में आप नोट्स बना ही रहे हैं, ऑब्वियसली पॉइंट आप लिखते जाइए, लेकिन इसके साथ आप मेंस के क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं इसको लेके आ सकते हैं। इवन इफ न्यू बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड तब भी डीजीपी वही रहेगा। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी इससे हो सकती है, लास्ट माइल इससे क्रिएट हो जाता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड है अपने आप में, वो विजुअलाइज एज एन अल्फा न्यूमेरिक ऑफलाइन ग्रिड सिस्टम है वो। और जो इंडिया के ज्योग्राफिकल टेरिटरी को 3.8 मीटर इंटू 3.8 मीटर ग्रिड में डिवाइड कर देता है। तो लॉजिस्टिक्स हैं, फिनटेक हैं, इमरजेंसी है, यूटिलिटी सर्विसेज हैं, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये अपने आप में एक ईज है। हाउ कैन यू फाइंड योर लोकेशन? आप यू नो यूजर जस्ट हैव टू प्रोवाइड लोकेशन एक्सेस ऑन द डिवाइस टू फेच द डीजीपी वैल्यू ऑफ द लोकेशन। उसके पास जीएनएसएस होना चाहिए, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, एग्जैक्ट लैटिट्यूड और एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड से आप कर सकते हैं। तो ये अपने आप में, ये भी अपने आप में एक इनोवेटिव है। मैं तो कहूंगा कि जो जो इवन गवर्नेंस है या इवन
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनके लिए भी बेनिफिट। ये हमारे जियो स्पेशल नॉलेज स्टैक का पार्ट बना एक तरीके से। जैसे हम एग्री एग्री स्टैक की बात करते हैं, ये जियो स्पेशल पॉलिसी का पार्ट बना। अब इंडिपेंडेंस ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व इज एट थ्रेट, वो आज की बात नहीं है। ट्रम्प्स डिपोजिशन डिस्पोजिशन इन द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, वो यूएस सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी की फ्रेजिलिटी को शो करता है। तो ऑब्वियसली यूएस सदियों से नंबर वन रहा है बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग पॉलिसीज एंड ऑल्सो इट्स करेज। लेकिन जब जब विम्स एंड फैंसी थे, जब जब इस तरह के परोकियल इंटरेस्ट आएंगे, तो फिर जो है उस पर फर्क पड़ सकता है। तो वही बात है कि इंडिया के लिए लेसन यही है कि फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी दे आर लिंक्ड विद द इकोनॉमिक प्रोसेसेस, और इंडिया एक मार्केट इकोनॉमी नहीं है। तो फेड की इंडिपेंडेंस बनी रहनी चाहिए, मैं बस इतना ही कहूंगा। आप मुझे बताइए आरबीआई की इंडिपेंडेंस के लिए तीन कौन से एलिमेंट्स को आप सोचेंगे? सुप्रीम कोर्ट्स डुअल टैक्स रूलिंग टू हर्ट ब्रॉडकास्टर्स एंड कंज्यूमर्स, ये आता है, ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट थीम आ गई, मेंस में आ सकता है। द ऑर्डर अलाउज सेंटर एंड स्टेट टू इम्पोज सेपरेट टैक्सेस ऑन डीटीएच एंड केबल टीवी सर्विसेज। सो डायरेक्ट टू होम एंड केबल टीवी सर्विसेज के अंदर अगर दोनों सेपरेट सेपरेट लेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग इज ऑलरेडी फेसिंग राइजिंग कॉस्ट्स, उनका एड रेवेन्यू कम हो रहा है, ओटीटी कंपटीशन भी हो रहा है, कंप्लायंस कॉस्ट राइज हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। पहले हर घर में केबल की तार आती थी, या फिर जो है डीटीएच एयरटेल है, या फिर वो और भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अदर डीटीएच डायरेक्ट टू होम सर्विसेज आल्सो। सो इससे क्या होगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी इंडिजिनस प्लेयर्स की वो कम हो जाएगी, एंड लीगल अनसर्टेनिटी तो है ही। सो हमारे लिए क्वेश्चन उठता है, तो व्हाट इट मीन्स फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो द कोर्ट emphasize that entertainment delivered digitally qualifies as luxury, which you can say that opens door for the states to now explore levying entertainment taxes on digital content consumption in addition to the existing GST। तो ये वाली बात है। तो शिफ्ट होगी अब धीरे धीरे इंडिया के टैक्स एनवायरनमेंट में, कंप्लायंस कॉस्ट जो टेक प्लेटफॉर्म्स के लिए है वो रेज होगा, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ भी सकती हैं। तो इसीलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्स इस चेंज लैंडस्केप में कैसे होगा, ये एक सोचने वाली बात है। एक समय था जो केबल वाले होते थे, केबल बिजनेस वाले होते थे, वही पॉलिटिक्स में आएंगे, वही जो है सारे सारे के सारे पैसे को इधर से उधर करेंगे। लेकिन चीजें चेंज हो रही हैं, टाइमिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, सो दैट इज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू कैन सी इंडिया कंसल्टिंग वर्ल्ड ऑयल मैप फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर 2 में जब आईआर की बात करते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आप 20 MPBH जो ऑयल आप ले रहे हैं वो वरना आएगा कैसे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 70% destined for Asia, very very important. This accounts for 30% of the world oil trade, 40% of India's food supply, नेचुरल गैस का भी, ऑल एलएनजी भी वहीं से आती है। देयर इज नो अदर वे टू ब्रिंग दीज वॉल्यूम्स टू द मार्केट। 54% ऑफ इंडिया एलएनजी सप्लाई कम बाय स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अल्टरनेटिव है जो रीडायरेक्ट करेगा, और उसके बाद जो है आप अल्टरनेट की जो बात कर रहे हैं उसकी यहाँ सामने बात की गई है। कैसे अभी देखिए आप यानबू और रेड सी से कैसे आप बहरीन और आप फिर डिफरेंट रूट से लेके आने की बात करते हैं। बट देन ईस्ट वेस्ट क्रूड पाइपलाइन और दूसरा अबू धाबी क्रूड पाइपलाइन, ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं, ये इसी बात के एग्जाम्पल हैं कि कैसे वक्त के साथ सोचना पड़ता है, कैसे आपको अपने स्ट्रैटेजी के बेनिफिट्स के लिए, कैसे आपको एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो फ्यूचर क्वेश्चन यहाँ से उठकर आ जाता है। तो वेस्ट अफ्रीकन नेशंस और अदर जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं वो हमारे लिए धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात करेगा। हमें सोचना होगा, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये भी कह सकते हैं कि इफ इंडिया टर्न्स टू वेस्ट अफ्रीका फॉर एडिशनल सप्लाईज, तो आप कह सकते हैं सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इंडिया मोर देन 90% इट इज इम्पोर्टिंग। India का total crude import around 35% come from Russia, more than 40% is coming from the Gulf and rest from Africa, the US and other sources। Africa share of imports जो है वो 5% रह गया है मई में। आप कह सकते हैं in 2024 more than 50% of India's LNG was sourced from the Gulf with Qatar supplying more than 80%। तो आपको ये डेटा और फैक्ट जब पता होंगे तो आप ज्योग्राफी के मैप को भी खोल कर देख के आप झट से बना देंगे, क्योंकि कतर जो है वर्ल्ड के टॉप 3 LNG एक्सपोर्टर्स में से।
और एलएनजी प्राइसेस अब धीरे धीरे फिर जो है बढ़ भी सकते हैं। इवन लॉन्ग टर्म एलएनजी प्राइसेस could rise as 60% of India's long term contracts are linked to crude rates. So the global energy market is not as evolved as the oil market, because there are very limited sources of alternative supplies. तो यही बातें हैं, ये हमें देखनी पड़ेंगी। इन्हीं से आपको सोचना पड़ेगा कि इंडिया के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, इंडिया कैसे उस चीज को वर्थवाइल बना सकता है। G7 leaders struggle for unity as Trump says removing Russia from it was a mistake. Obviously अब डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये आप इसको अगर थोड़ा सा डिटैच होकर देखेंगे तो यू आर सेइंग दैट यूएस विल बिहेव द वे इट वांट्स टू बिहेव। बट मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, क्या यूएस इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को स्ट्रांग करने के लिए वाकई कुछ कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। ऑन इंडिया कनाडा टेबल ग्रुप अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम्स, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? ट्रांसनेशनल क्राइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। तो इंटरपोल है, सीबीआई है, एनआईए है, खालिस्तान है, ये सारे इश्यूज जो है हमें ठीक से हैंडल करने होंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बॉक डाउन। जहां तक साइप्रस की बात है, इट इज स्टैंडिंग विद अस, इट इज सपोर्टिंग अस, इट इज गिविंग इट्स वॉइस टू अस। एंड जहां तक फाइनेंशियल टेरर, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब एस्पेक्ट्स की बात है, तो हम साइप्रस को टैक्स हेवन बनने देना नहीं चाहते। That is why, Prime Minister and the Government of India always believes that resolution and stability must be there through talks. FATF ने कंडम किया पहलगाम अटैक को, रेड फ्लैग द फंड्स एंड टेरर सपोर्टर्स। आपके आंसर में ये पार्ट होना चाहिए, चाहे वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन आए, चाहे एसए में हो, चाहे एथिक्स में हो, चाहे फिर ये बात हो कि कैसे गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के किसी बहुत बड़े मुद्दे पर उसे सपोर्ट करते हैं। So with these ideas and thoughts, where we can, understand, and we can uh, definitely move forward with that ability, I would say that these all ideas are not to be written in the examination. लेकिन ये सारी बातें जानने के बाद जब आप confidently कुछ लिखना चाहेंगे with some basic facts, then there will be for sure short selection. And that is what Ansarkari believes in and wants you to pursue with your honesty, integrity, and going beyond your normal circumstances. Thank you very much.